إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعد صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اور قرآن دونوں کا تذکرہ کیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے. تو اس لحاظ سے انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن کریم کے حوالے سے کچھ ہم گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز، جس میں میرے لیے نصیحت کی باتیں ہیں. ہم آپ سب کے لیے، امت کی ماں اور بہنوں کے لیے بھی بہت سارے پیغامات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہے اور تیزی سے گزرتا ہوا یہ رمضان ہمارے سروں سے بڑی سرعت کے ساتھ یہ گزر رہا ہے. یقیناً ہمارے جو بھائی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. جانتے ہیں ہم اور آپ اچھی طریقے سے کہ ماہ رمضان یہ ماہ قرآن بھی ہے. اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کریم کا نزول اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں کیا ہے. تو اس لحاظ سے انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کے حوالے سے کچھ باتیں ہم رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. ہم اور آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس لیے بچپن سے ہم قرآن مجید کے فضائل، اس کے برکات، اس کے ثمرات، قرآن مجید کے مقام اور مرتبے، قرآن مجید کی تاثیر، قرآن مجید کی عظمت
کے حوالے سے ہم بچپن سے الحمدللہ سنتے چلے آ رہے ہیں، اور آئندہ بھی قیامت کی صبح تک علماء کرام کی زبانیں انشاءاللہ ہم سنتے رہیں گے۔ سچی بات تو یہ، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں خلاصہ قرآن کے نام سے، تفسیر قرآن کے نام سے بہت ساری باتیں قرآن کریم کے حوالے سے ہم سنتے ہیں الحمدللہ، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید یہ بڑی عظیم کتاب ہے، بہت 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 بڑی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب عزیز کے بارے میں جتنا بولا جائے کم ہے، جتنا لکھا جائے کم ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کے حوالے سے بولتے بولتے ہماری زبانیں تھک جائیں گی، اور لکھتے لکھتے ہمارے قلم سوکھ جائیں گے، لیکن قرآن مجید کی عظمت، اس کی تاثیر، اس کا مقام و مرتبہ کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، کتاب اللہ ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی کتاب یہ اللہ کی رسی ہے، رسی آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابشروا فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے بشارت کی بات ہے، اس قرآن مجید کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں، قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فَتَمَسَّكُوا بِهِ لَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدُ أَبَدًا۔ اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا، اسے مضبوطی سے تھامے رہنا۔ اللہ کی قسم ہے، جس نے قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لیا، نہ وہ کبھی ہلاک ہوگا اور نہ کبھی وہ گمراہ ہوگا۔ اس حدیث میں آپ نے دیکھا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ کی رسی ہے، رسی۔ اور دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، لہٰذا قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو، نہ کبھی گمراہ ہوگے اور نہ کبھی دنیا میں ہلاک و برباد ہوگے۔ میں اگر سچی بات آپ کو بتاؤں، آج امت محمدیہ کا ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی بے چین ہے، خاص طور پر مستقبل کو لے کر کے ہر آدمی فکر مندی میں ہے، اور خاص طور پر ہمارے وطن عزیز ملک، ہمارے بھارت، ہمارے ہندوستان کے حالات اتنے گمبھیر ہیں مسلمانوں کے حوالے سے کہ ہر آدمی کہیں نہ کہیں سسک رہا ہے اور ہر آدمی کہیں نہ کہیں بے چینی محسوس کر رہا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، اس ملک میں کیسے رہنا ہے، اس ملک میں کیسے جینا ہے، اس ملک میں کیسی زندگی گزارنی ہے۔ ہم اقلیت میں ہیں، وہ اکثریت میں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ دو چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں آنی چاہیے انشاءاللہ۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کا قرآن مجید، اور دوسرا ہے قرآن مجید کی شرح، اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی تفسیر۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ، بولیے نا، صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر میں نے اور آپ نے پکڑ لیا، سبحان اللہ، امت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، امت کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہر آدمی مستقبل کو لے کر کے جو بے چین ہے، اپنے بال بچوں کو لے کر کے، اپنے کاروبار، اپنے بزنس کو لے کر کے، اپنے معیشت کو لے کر کے، ہر آدمی جو فکر مندی کا شکار ہے، حل بتایا ہے اسلام نے، حل بتایا ہے ہماری شریعت نے، قرآن اور حدیث۔ یہ دو چیزیں مضبوطی سے تھام لو، ایک ایک کر کے سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو، یاد رکھو، یہ میرے نبی کی باتیں ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب کبھی بھی مسلمانوں نے تاریخ اسلام کی بات میں کروں، وقت تیزی سے گزر جائے گا اور جو باتیں مجھے کرنی ہے وہ میں کہہ نہیں پاؤں گا، میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں۔ تاریخ اسلام ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جب مسلمانوں نے سبحان اللہ اس قرآن عزیز کو، قرآن مجید کو مسلمانوں نے جب تھامے رکھا، جب پکڑ کر کے رکھا،
रहा, कुरान करीम से रिश्ता रहा, कुरान करीम से रिश्ता मजबूत रहा, कुरान पढ़ते रहे, कुरान पर अमल करते रहे, कुरान की दावत देते रहे, कुरान की आयतें सुनाते रहे। जब कभी मुसलमानों ने यह काम किया, उन्हें 3 वक्त का खाना नसीब नहीं होता था। वो मुसलमान ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में नहीं रहते थे। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से आता है, रेत को अपना तकिया बना करके लेट जाते थे। मगर क्या मजाल, ये दुनिया की काफिर कौमों का क्या मजाल, ये मुसलमानों की तरफ आंखें उठा करके देखें। 313 एक तरफ है, सुभान अल्लाह, ये बच्चा बच्चा जानता है, और 1000 एक तरफ है। लेकिन तारीख ने हमें क्या सबक दिया है, कि हमें क्या पैगाम दिया है। अल्लाह ने फतह, अल्लाह ने कामयाबी, अल्लाह ताला ने गलबा 1000 को नहीं 313 को दिया था। सुभान अल्लाह, वो 3 वक्त का खाना नसीब नहीं होता था। मेरे आपके नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन किसी काफिर की क्या मजाल, किसी मुशरिक की क्या मजाल, किसी यहूदी की क्या मजाल, किसी ईसाई की क्या मजाल, वो मुसलमानों की तरफ टेढ़ी नजर उठा करके देखे। आज हम और आपकी क्या हैसियत है, हमारी आपकी क्या वकात है, हम कितने पानी में हैं, और हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है, क्या बर्ताव किया जा रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। मैंने इशारा किया, इसी महीने में 10 रमजान के आसपास की बात है, बेंगलोर में एक बच्चे को दिन दहाड़े मार दिया गया। इंतजामिया पूरी खड़ी है, सुभान अल्लाह, उसके सामने एक बच्चे को एक जानवर के नाम पे मार दिया गया। क्या है हमारी हैसियत और क्या है हमारी वकात। लोग कैसे हमें गिरी हुई नजरों से देख रहे हैं, लोग कैसे हमें हकीर निगाहों से देख रहे हैं, ये हम और आपसे मख्फी नहीं है। जानते हैं वजह क्या है, मैं आपको बताऊं सबब क्या है, रीजन क्या है। वो जो रस्सी थी ना, रस्सी जो आसमान से रस्सी आई थी ना, एक किनारा तो अल्लाह ने पकड़ रखा है, दूसरा किनारा हमने छोड़ दिया है। रस्सी का किनारा हमने छोड़ दिया है। नतीजा ये है, इस उम्मत की मिसाल अगर मैं आपको दूं, हंसी ना आए, किसी को हंसी ना आए, इस उम्मत की मिसाल ऐसे है जैसे कटी हुई पतंग की तरह है। अगर कटी हुई पतंग है, अपने असल से, अपने जड़ से अगर कट जाए तो पतंग का क्या आलम होगा। कहीं रोडों पर गिरती है, कहीं खंभों से टकराती है, कहीं पानी में जा गिरती है, किसी छत पे जा करके गिरती है। हमारी और आपकी मिसाल, इस उम्मत की मिसाल सुभान अल्लाह उस कटी हुई पतंग की तरह है। क्यों जानते हैं, हम अपने जड़ से अलग हो गए हैं, हम अपने असल को हमने छोड़ दिया है। पतंग अगर कट जाए, अपने जड़ से अलग हो जाए, तो वो पतंग कहीं भी जा करके गिर जाती है। इस उम्मत की हाल वही है, इस उम्मत का मामला वही है, हम अपने जड़ से अलग हो गए हैं। चलिए दुआ कर ले हम सब मिलकर के, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान से जुड़ने वाला बनाए, आमीन बोलिए। अल्लाह ताला हम सब का रिश्ता कुरान करीम से मजबूत फरमाए। मैं आपको बताऊं, बातें क्या बताऊं, मुझे तिलावत के हवाले से, फदाइल के हवाले से कुछ बातें रखनी है, वरना तासीर कुरान, अजाइब कुरान, मोअज़ात कुरान, अरे जनाब ये तो क़यामत तक ख़त्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। कुरान की तासीर कैसी कैसी है, कैसे कैसे दिलों पर कुरान करीम ने असर किया है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। और जानते आइंदा जुमा आने से पहले आखिरी अशरा भी शुरू हो जाएगा, अब उस पर भी मुझे बात करनी है। बहुत सारी बातें हैं और ये वक्त बड़ा कीमती होता हमारे लिए। आइए मैं 2 हदीसें बता करके कुछ बातें आपको बताऊं। मेरे आपके नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक एक लफ्ज पर गौर करना। ये सोने के लिए अल्लाह ने ये वक्त नहीं दिया, साल भर तुम सोते रहते हो। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप तो नहीं सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप एक मिसाली मुसल्ली है और एक मिसाली नौजवान है। उम्मत का हाल यह है, इन्हें दुनिया जहां में नींद ना आए, जुमा में इन्हें बराबर नींद आती है। जुमा में आराम से सो जाते बेचारे। दुआ करे अल्लाह यहां न सुलाए, कब्र में सुलाए इंशाअल्लाह, आमीन बोलो। वहां आराम की नींद आए इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। ये दुनिया ये जेल खाना है हमारे लिए, ये दुनिया ये जेल खाना है हमारे लिए। यहां जेल की जिंदगी रह करके काट लेंगे। अल्लाह अगर हमें सुलाना है, कब्र में अच्छी नींद सुला दे इंशाअल्लाह। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, नेक आदमी को अल्लाह
तबारक व तआला कब्र में ऐसे सुलाता है जैसे दुल्हन से कहा जाता है तो अपने कमरे में सो जा, सुबह तक जगाने वाला कोई नहीं। सुभान अल्लाह। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला कब्र में अहले ईमान के साथ मामला करेगा। दुआ करे अल्लाह हमारे साथ आसानी वाला मामला फरमाए। मैंने कहा प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया इक़राउल कुरान, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत का मामला कैसा होगा, क़यामत का मंजर कैसा होगा। शायर ने बड़ा अच्छा मंजर खींचा है। शायर कहता है यकीनन आएगा वो दिन कि जब महशर बपा होगा, वहां ना बाप बेटे का, न बेटा भाई, न बेटा बाप का होगा, न हमशीरा बिरादर की, न ज़ौजा होगी शौहर की। वहां दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा। ये क़यामत का मंजर होगा। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कुरान पढ़ा करो, कुरान सीखा करो, कुरान पर अमल किया करो, कुरान की तिलावत किया करो, कुरानी वाली जिंदगी गुजारा करो। जानते क्या होगा? फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही। ये कुरान मजीद पढ़ने वालों के हक में, तिलावत करने वालों के हक में, अमल करने वालों के हक में सिफारिशी बन करके आएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हश्र के मैदान में ये कुरान मजीद सिफारिशी बन करके आएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और एक रिवायत और सुनिए, जानते हैं उससे कुरान पढ़ने वाले से, कुरान पर अमल करने वाले से, कुरान की तिलावत करने वाले से कहा जाएगा इक़रा इक़रा वर्क़ी वरत्तिल कमा, और आगे कहा जाएगा वरत्तिल कमा कमा कुंता तरत्तिल फी दारी दुनिया। उसे कहा जाएगा वर्क़ी, कहा इक़रा वर्क़ी, पढ़ पढ़, चढ़ते जा चढ़ते जा, सीढ़ियां चढ़ते जा, जैसे कि तो दुनिया में तिलावत किया करता था ना। सुभान अल्लाह। आज तो कुरान करीम की तिलावत करते जा। इसलिए मेरे भाइयों कुरान करीम पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, कुरान करीम पर अमल करें, कुरान करीम को सीखें। जवान आदमी अगर नौजवान बच्चा है कुरान पढ़ने नहीं आता है, कुरान पढ़ने के लिए वक्त देना चाहिए, सीखने के लिए वक्त देना चाहिए, तिलावत के लिए वक्त देनी चाहिए। हमारे ऐसे कितने लोगों के बारे में हमने सुना है 60-60 साल की उम्र हो गई, सुभान अल्लाह, और कुरान मजीद उन्होंने याद कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, 60 साल की उम्र में पहुंच करके उन्होंने कुरान मजीद का हिफ्ज किया। इसलिए मेरे भाइयों एक और रिवायत सुनते हैं, बात चूंकि मैं जल्दी में कर रहा हूं, एक और रिवायत सुनिए। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अस्सियामु वल कुरान युशफ़िआन लिल अब्द यौमल क़ियामा। रोजा और कुरान, अल्लाह का शुक्र मनाओ, ये दोनों एक साथ जमा हो गए हैं। रोजा भी है और कुरान भी है, दोनों है इंशाअल्लाह। रोजा तो जल्दी गुजर जाएगा लेकिन कुरान ये खत्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। क्या कहा? अस्सियाम वल कुरान युशफ़िआन लिल अब्द यौमल क़ियामा। रोजा और कुरान ये दोनों सिफारिश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के हक में। और रोजा कहेगा अय रब्बी मनअतहु तआम मनअतहु तआम वश्शहवाति बिन्नहारी फशफ़अनी फी। रोजा कहेगा अय अल्लाह तबारक व तआला इसको मैंने दिन में खाने से, दिन में शहवत से मैंने रोक करके रखा था, अय अल्लाह मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। कुरान क्या कहेगा? वह यक़ूलुल कुरान, और कुरान कहेगा मनअतहु नौम बिल्लैल फशफ़अनी फीही। कुरान कहेगा अय अल्लाह मैंने रात में इसको सोने से बाज रखा था, रात में ये सोता नहीं था, कुरान करीम की तिलावत करता था, अय अल्लाह मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रोजे की सिफारिश और कुरान की सिफारिश कबूल करेगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, ये दोनों चीजें आज इकट्ठा हैं, इस महीने में इकट्ठा है। कुरान भी मौजूद है और रमजान का महीना मौजूद है। और एक बात और हम कहेंगे, कुरान सिर्फ ये रमजान में तिलावत के लिए नहीं आया है, कुरान की तिलावत हमेशा होनी चाहिए। बाज भाइयों को देखा गया है रमजान में कुछ पारा पढ़ लेते हैं, कुछ पारे की तिलावत कर लेते हैं, कुरान खत्म भी नहीं कर पाते हैं और इससे पहले रमजान खत्म हो जाता है। याद रखो कुरान
कुरान सिर्फ रमजान के लिए नहीं आया है, हमेशा मरते दम तक इंशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत करेंगे मेरे भाइयों। और याद रखिए कुरान करीम से हमारा रिश्ता बड़ा मजबूत होना चाहिए। अफसोस की बात है जो मुझे कहने पड़ती है, हमारा आपका कुरान करीम से रिश्ता कैसा है जानते? कौल और करार की बात आती है, कसम खाने की बात आती है, हमें कुरान याद आता है। कोई मौलवी ताबीज बनाएगा, ताबीज पहनने की बात आएगी, हमें कुरान याद आता है मेरे भाइयों। इसी तरीके से झाड़ फूंक के नाम पर, इलाज के नाम पर, रुकिये के नाम पर हमें कुरान मजीद याद आता है। और इन जालिमों ने तो अल्लाह के कलाम को, कुरान की आयत को रुकिया के नाम पर बेचना भी शुरू कर दिया है, बेचना भी शुरू कर दिया है। दुआ करें अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। हम सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं, हम सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी बन न सके। हम ज़बानी मुसलमान हैं, हम कौली मुसलमान है। हमारे आपके अमली जिंदगी में कुरान नजर ना आया, हमारी तिजारत में कुरान नहीं, हमारे बिजनेस में कुरान नहीं, हमारे दुकानों में कुरान नहीं, हमारे मकानों में कुरान नहीं, हमारी जिंदगी में कुरान नहीं, हमारी जुबान पर कुरान नहीं। कौन से हम मुसलमान हैं? कुरान से इतना दूर हो गए हम मेरे भाइयों। अफसोस की बात है कितने लोगों को देखा गया है मस्जिदों में दिन दिन भर सोएंगे, आराम करेंगे, गप्पे मारेंगे, दुनिया जहां की बातें करेंगे, तुरान की बात, अफगान की बात, सियासी मसाइल, हजार बातें करेंगे। कुरान इसी अलमारी में रखा रहता है, यहां अलमारी में रखा रहेगा, उठ करके 4 आयतें पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। ऐसे गुजारोगे रमजान। रमजान इसीलिए आया है, तुरान और अफगान की बात करने के लिए आया है। दुनिया जहां के मसाइल पर तबसरा करने वालों, क्या हो रहा है इस मुल्क में, फला सरकार आ जाएगी तो हमारे साथ क्या होगा? अरे कुरान तेरे सामने मौजूद है, अल्लाह के बंदे इसे खोल करके पढ़। दुनिया के सारे मसाइल का हल अल्लाह ने कुरान में रखा है। माहिर अल कादरी ने बड़ा अच्छा कहा था, कुछ अशार है मैंने नोट किया है, मैं आपको सुनाता हूं। मुझे कुछ नहीं कहना, जो कहना उसी शायर को कहना। वो इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने क्या कहा था जानते हैं? ताकों में सजाया जाता हूं, ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, तावीज बनाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं। वो आगे क्या बोलते हैं? किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं है, किस उर्स में मेरी धूम नहीं है, फिर भी अकेला रहता हूं, मुझसा कोई मजलूम नहीं है। कुरान के जैसा मजलूम किताब इस दुनिया में शायद कोई किताब होगी। आपको खबर भी है, आपको पता भी है, मेरे आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु कल क़यामत के रोज शिकायत करेंगे। अल्फाज सुनिए, अरे अगर अरबी आती होगी ना रो दोगे आप, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीने आ जाएंगे आपको। मेरे नबी कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपसे बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं। आप मेरे बारे में अच्छा ख्याल रखिए, मैं अच्छी उम्मीदें आपके बारे में रखता हूं, हमारा आपका नहीं। जिन्होंने कुरान करीम को छोड़ दिया है, मेरे नबी उनका गिरबान पकड़ेंगे और कहेंगे वक़ाल रसूल, वक़ाल रसूल, या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी इन्ना कौमी तखदु हादल कुरान महजूरा। रसूल कहेंगे हादल कुरान महजूरा, आए मेरे परवरदिगारा, आए मेरे अल्लाह, ये मेरी कौम है, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, इन्होंने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को छोड़ दिया था। मेरे नबी अपने उस उम्मती का गिरबान पकड़ करके अल्लाह के दरबार में शिकायत करेंगे जिसने कुरान मजीद को छोड़ दिया होगा। इसलिए मेरे भाइयों, और अफसोस की बात है कुरान छोड़ने की कई शक्लें हैं। मैं एक मिसाल आपको दूंगा, नाराज ना होना, नाराज ना होना कोई भाई, अपने दिल पर न लेना, ये मेरे लिए नसीहत की बातें हैं, आप सबके लिए नसीहत की बातें हैं। जानते हैं क्या? शबीना के नाम पर कुरान मजीद का जो मजाक उड़ाया जाता है, खिलवाड़ किया जाता है, ये किताब एक ऐसी किताब है, दुनिया की ऐसी मजलूम किताब है, मुसलमान इस किताब को बगैर समझ करके पढ़ते हैं। अफसोस होता है मेरे भाइयों, कुरान आया था समझने के लिए, समझाने के लिए, अमल करने के लिए। अरे ये कानून है, कुरान क्या है? कानून है, कानून। मुझे याद पड़ता है, आज से कई साल पहले की बात है, जब एक आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, दुनिया के बड़े बड़े बादशाह इकट्ठा हुए, सबने कहा
आप अपनी कोई राय दें, अपना कानून पेश करें, अपना कानून पेश करें, अपना लॉ पेश करें, अपना दस्तूर पेश करें। सऊदी अरब के बादशाह शाह सऊद ने कुरान उठाया, कहा ये मेरा कानून है, ये मेरी लॉ है, ये मेरी कानूनों वाली किताब है, ये किताब जो कहेगी हम उसी पर अमल करेंगे। सुभान अल्लाह, ये कुरान एक लॉ है, एक कानून है। अफसोस है मुसलमानों पर, दुनिया की वाहिद कौम है ये मुसलमान जो कुरान को बगैर समझे पढ़ती है। दुआ करें अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। कुरान की बातें होंगे उठ करके चल लेंगे, एक आयत का माना पूछो जनाजा निकल जाएगा, नहीं बता सकते हैं। इतना खिलवाड़ तुमने कुरान से किया है, तमाशा बना करके रखा है। गज़ब इलाही को दावत न दो, अज़ाब इलाही को दावत न दो। अब किस अज़ाब के मुंतज़िर हो? दुनिया तहस नहस हो रही है। कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, किसी जालिम ने फेसबुक पर कमेंट किया कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को ही बुला रहा है। बड़ी मोहब्बत है अल्लाह को मुसलमानों से, मजाक उड़ाया उसने। एक एक करके मुसलमानों को जल्दी से बुला रहा है, कहीं तुर्की वालों को बुला रहा है, कहीं फला इलाके वाले को बुला रहा है। मजाक किया उसने। हम अल्लाह के गजब के निशाने पर है मेरे भाइयों। मैं शबीना की बात कर रहा था, कहीं एक रात में पूरा कुरान खत्म, कहीं 3 रात में पूरा कुरान खत्म। क्या है ये? कुरान ये खेल है? कुरान ये तमाशा है? और जानते हैं, आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है, कैसे कैसे वीडियो वायरल हो रहे। पढ़ने वाला कुरान ऐसी बेहुरमती से पढ़ेगा, यअलमून तअलमून के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। न पढ़ने वाले को समझ में आएगा, न पढ़ाने वाले को समझ में आएगा। मकसद क्या है? कुरान खत्म करना। अल्लाह की कसम है, कुरान ऐसे ना पढ़िए, कुरान ऐसे पढ़िए एक एक हर्फ और एक एक लफ्ज आपको समझ में आए। आइए आप हमारी मस्जिद में, मैं आपको दावत देता हूं, ये हमारे नहीं हम सब की मस्जिद है। आइए तरावी की नमाज यहां पढ़िए। आप देखिए हमारे हाफिज, जो भी पढ़ाने वाले हाफिज हैं, कुरान करीम ऐसा पढ़ते हैं, एक एक लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में आएगा। मुसल्लियों पर असर होता है। बाज मुसल्ली सिसकियां भी लेते हैं, रोते भी है। सुभान अल्लाह, कुरान ऐसा पढ़िए। प्यारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में आता है, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और इसी तरीके से और सहाबा फरमाते हैं अल्लाह के नबी कुरान ऐसे पढ़ते थे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तकीन। समझ में आया आपको? आया कि नहीं? ऐसे कुरान पढ़िए, ये कुरान का हक होता है। कुरान ऐसे पढ़िए। मजाक बना करके रखा है मुसलमानों ने। किसने कहा कि कुरान मजीद को रमजान में खत्म किया जाए, तरावी में खत्म किया जाए? जितनी तौफीक है उतनी पढ़िए। सुभान अल्लाह, कुरान को कुरान के ढंग पर पढ़िए। अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कहा, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। ऐ मेरे हबीब और ऐ मेरे नबी, कुरान ठहर ठहर कर पढ़िए, कुरान समझ समझ करके पढ़िए। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने 3 दिन से कुरान कम में खत्म किया, कम में खत्म किया, लम यफ्का, उसने कुरान को समझा नहीं मेरे भाइयों। इसलिए कहना ये चाहते हैं, पैगाम ये देना चाहते हैं, हम कुरान की अमली तस्वीर बन जाए इंशाअल्लाह। मुझे याद पड़ता है माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वो हदीस। एक सहाबी रसूल आए, उन्होंने आकर के कहा अम्मी जान एक बात ये बताइए, प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? माई आयशा ने क्या फरमाया? काना खुल्कुहु अल कुरान, काना खुल्कुहु अल कुरान। कहा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का ये अमली नमूना थे, मुजस्सिमे कुरान थे। नबी की जिंदगी में देखो, नबी के कारोबार में कुरान, तिजारत में कुरान, जिंदगी में कुरान, खाने पीने में कुरान, उठने बैठने में कुरान, शबो रोज में कुरान, बीवी बाल बच्चों में है तो कुरान। पूरी जिंदगी कुरान का अमली नमूना थे, मुजस्सिमे कुरान थे, कुरान की अमली तस्वीर थे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उसी नबी के उम्मती है, हम उसी नबी के मानने वाले हैं, उसी नबी पर मर मिटने वाले हैं, उसी नबी की अदाओं पर चलने वाले हैं। हमें भी कुरान की अमली तस्वीर बनना पड़ेगा इंशाअल्लाह। बोलो
इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और आखिरी पैगाम ये दे करके वक्त पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, इन अल्लाह यरफ़उ, कुरान की बात आए और ये हदीस अगर ना पढ़ूं तो इस उन्वान का हक अदा नहीं होगा। इन अल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वाम व यदअु बिही आखरीन। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, इसी किताब अजीज के जरिए से अल्लाह ताला एक कौम को बुलंद करता है, बुलंदी पर लाता है, उठाता है, उठाता है। और जिसने इस कुरान मजीद को छोड़ दिया अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में जलील करता। इससे बड़ी जिल्लत की बात मुसलमानों के लिए और क्या होगी। जो कौमें मुसलमानों से जिंदगी की भीख मांगा करती थी, आज वो मुसलमानों से मुसलमानों की शहरियत मांग रही है, निकाले की धमकियां दे रही है। इससे बड़ी जिल्लत की और क्या बात होगी। और हम और आप भी कम नहीं है, हम और आप भी गार्जियन है ना। ये समर सीजन है, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं माँ बाप पर कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। रमजान आ गया है, रमजान पर बातें हो रही हैं और वालिदैन पर जरा बात नहीं हो रही है। समर सीजन है ना, यह हॉलीडे है, ये बच्चे भी हैं, माँ बाप हैं, सब लोग मौजूद है ना। हमारा बच्चा कन्नड़ा में कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर है, ट्यूशन लगा देते हो, ट्यूशन लगा देते हो, बच्चे की कन्नड़ा अच्छी हो जाए, इंग्लिश अच्छी हो जाए। अरे एक नहीं डबल ट्यूशन लगाओ, अल्लाह ने पैसा दिया, किसने मना किया है। कुरान में कमजोर है, कभी आपने ट्यूशन लगाया। और इस मस्जिद में तो फ्री में तालीम होती है, फ्री में तालीम होती है, एक पैसा आपसे तालीम के नाम पर नहीं लिया जाता है। ऐसे भोले भाले मुसलमान हैं, फ्री में भी बच्चों को पढ़ने के लिए मस्जिदों में नहीं भेजते हैं। कुरान की तालीम का कोई शौक नहीं है, खेल और तमाशा हमने बना करके रखा। आपने पूछा अपने बच्चे से, छुट्टियां चल रही है ना, पूछा आपने, अरे मेरे बच्चे कमा करके लाते हो ना, पसीना बहाते हो, दिन रात बोलते मैं बिजी हूं, बिजी हूं। किसके लिए बिजी हो? जमात के लिए, मेरे लिए, इनके लिए ना, अपने बीवी बाल बच्चों के लिए बिजी हो। उन्हीं बच्चों से आपने पूछा, मेरे बच्चे रमजान 15 गुजर गया है, कितने पारे की तूने तिलावत की है, कितने सूरतें तूने याद की है, कितना कुरान तूने पढ़ा है। पूछा अपने अपने बच्चों से। ये पूछिए, गार्जियन ऐसे होते हैं, जिम्मेदार ऐसे होते हैं। याद रखो, कुरान एक रूह है। क्या है? कुरान एक रूह है। इंसान में आ जाए तो इंसान जिंदा, समाज में आ जाए तो समाज जिंदा, मुआशरे में आ जाए तो मुआशरा जिंदा, और इंसानों में आ जाए तो इंसानियत जिंदा हो जाती है। कुरान रूह है, रूह। इसे कभी अपने दिल और दिमाग और अपने जिस्म से निकलने ना दो। चलिए हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहने वाले को भी